So we were talking about the annual horoscopy. And annual horoscopy, we have calculated all dasha, etc. How do we calculate dasha? That we have done. So we move ahead with that actually. So in annual horoscopy, we use one more chart that is basically known as Tripataki chart. Tripataki chart. And this also gives an overview of the nature of event which are likely to dominate in that particular year. And basically, this is based on the Veda of Lagna or the moon. Which planet are causing Veda of Lagna? Basically, we consider Lagna, but sometimes we see the moon also. If there is any planet which causing obstruction to the Lagna or the moon. And the principle is if the malefic planet are causing obstruction or if malefic planet are causing Veda of Lagna, so naturally the trouble and tension or the mental tension is expected during that year. But if benefic planet are causing Veda of Lagna or the moon, then that is a beneficial, that is a good indication that good events are likely to happen in that particular year. Then it indicates that when one malefic planet is having an obstruction of Lagna or moon, then it indicates troubles and obstacles. When two malefic planets are causing Veda of Lagna or moon, it indicates physical ailments. And when three or more malefics are obstructing or causing Veda of Lagna or moon, that it indicates intense trouble or the serious trouble like death. Now, how do we make this Tripataki chart? So if you see here, what we have done, we have drawn three vertical lines and we have drawn three horizontal lines and we have joined them with all the corners. We have joined them with each other. So three vertical line, three horizontal line, and we have joined them actually. And what we do, we write here the Lagna of the annual chart. Whatever is the Lagna of annual chart that we write here. So in this case, in our example, the Lagna was the 10th sign. So we have written 10 sign here. Then we write anti-clockwise 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, like we cover all the 12 rashis. So we start from here. This is the midpoint. So it looks like a flag. So that's why they call it Tripataki chakra actually. So we write here in the middle point the Lagna of the annual horoscopy chart. एनुअल चार्ट का लग्न हम जो है यहाँ पर लिखेंगे. अब बाकी जो प्लैनेट की पोजीशन लिखते हैं दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द birth chart, not the annual chart. So how we do that actually? Suppose we want to know the position of moon. So what we will say, we will write the completed years plus 1 oblique 9. Completed years, let's say in this case it was 35 years, so 35 plus 1 divided by 9. And remainder number of places counted from the house occupied by the natal moon. आपके बर्थ चार्ट में जो मून का प्लेसमेंट है उससे आपको काउंट करना पड़ेगा टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ मून इन द त्रिपताकी चक्र. आपने कंप्लीटेड ईयर्स लिया, इसको ऐड किया, एक डिवाइड 9 से किया, और जो भी रिमाइंडर आता है so that number of places you have to count from the house occupied by the moon in the natal chart. मान लीजिए यहाँ पर 35 plus 1 36 divided by 9. So what is the remainder? 0. 0. 0 means 9. So we have to count 9 from this natal moon, and that will be the position of moon in the Tripataki chakra. Similarly, for indicating the position of Sun, Mercury, Jupiter, Venus, and Saturn, we have to start from this completed years plus 1 divided by 4. And whatever is the remainder, that again you have to count from the natal position of these planets. Similarly, for Mars, Rahu, and Ketu, we use this formula. So with this, we indicate the position of all these planets in the different signs. So it is basically a combination of both the birth chart and the annual chart. Now what we try to do, we try to find out, this is the Lagna of the annual chart.
and whatever is the position of moon, wherever the moon falls. So all those planets, let's say this and this, from three positions. If this is the Lagna, this planet will cause Vedha, this planet will cause Vedha, and this planet will cause Vedha. So if these are the malefic planet, then it is not a good position. But if these are the benefic planet, then it indicates a good position in that financial year, or indication of good events in that annual year. For example, in this case, Lagna, this is aspect, this is causing Veda Jupiter. No planet here, this is Mercury. So this is an association of all benefic planet. So it indicates good events in that annual year. So we see the Veda particularly of the Lagna only, and we see which planets are causing Veda. If these are malefic planets, then there is a cause of problem. Otherwise, if these are benefic planets, then it indicates auspicious events in that year actually. Sir, this chart will be there in the software? Yeah, it is already there. It is there in the software. Okay. All Sir, these charts are there in the software. सर मून से कैसे करेंगे? मैं दिखाता हूँ आपको सब. There should be some option of Tripataki Chakra also. Mhm. The screen has gone. Let us. No, I think it has gone somehow, so I can't bring it back. But anyway, there is an option of this Tripataki Chakra also. And if you see here, yeah. So if you want to see from moon, where is moon here? Moon is here. So this planet, this planet, this planet, and this planet will cause Veda of moon. So you find only one planet, sun is causing Veda of moon. So it indicates the minor problems. There is no other planet, only one malefic planet is there. So it indicates minor problems as far as moon is concerned. But if you see from the Lagna, then you find that all benefics are having Veda. So that indicates good results, good events in the life, in that year actually. Now, what is the effect of different planets causing Veda of moon or the Lagna actually? So if sun is causing Veda, it indicates worries, instability, fever, wasteful expenditure, or the failure. If Mars is causing Veda, it indicates problem from the enemies, blood pressure, injuries, accident, and operations. Mercury is causing Veda, gains in the business. It's a benefic planet. Financial gains, disharmony in the family, skin and nerve disease, fear from enemies. Jupiter, unexpected gains, pilgrimage, auspicious function, success. Venus again, financial gains, favor from government, success in exam and competitive examinations. Then acquiring of vehicle or luxury item, then windy complaints. Saturn is trouble, distress, loss of wealth, mental agony, windy problem. Rahu, loss of honor, hurdles, failures, mental and physical troubles, and Ketu is a dishonor, depression, injury, accident, and abdominal problems. So these type of problems you can indicate, you can have an idea by seeing the planet which are causing Vedas. So this is how we use this Tripataki Chakra. And after Tripataki Chakra,
It's a Sir, very one thing I wanted to ask in this, you were saying even it can cause death. तो वो कभी 3 अगर हो malefics तीन, तब. हाँ, अगर ज्यादा मेलिफिक का एसोसिएशन है तो उससे जो है दैट मे कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम. बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि एनुअल चार्ट इज ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ द बर्थ चार्ट. द बेसिक चार्ट इज द बर्थ चार्ट. So unless there are some serious indications in the birth chart, so whatever indications may be indicated in the this annual chart, they will not happen actually. So basic chart, you have to always keep in mind the Lagna chart. There has to be some indication in the Lagna chart also of the same event actually, or birth chart. Then only that event can take place. But there is no indication in the birth chart, then whatever indication may be there in the annual chart, that will not happen actually. Okay. So like divisional charts we use, so we always keep in mind the birth chart. So similarly, in the case of annual horoscopy also, we have to keep that birth chart. And that's why we say that annual chart is not to be seen in isolation. It is to be seen along with the birth chart only. Now, another important points, Sahem. And these are very, very important points. And these are not only applicable for annual horoscopy, these are applicable for the birth chart also. And many people nowadays have seen they make prediction based on these points, which are known as Sahem. And these are different points which indicate different type of events in the life, or the different areas of the event actually. And if you see this, and basically this comes from Tajik astrology only, which is the basis of this birth chart, this annual chart also. And there is a mention of different sahems in different this text actually. So for example, this Acharya Neelkantha, he talks about 50 sahem. Acharya Venkatesh, he talks about 40 sahem. And Keshav, he talks about 25 sahem. Now, there are names of different sahem like Punya, Vidya, Yash, Mitra, Mahatma, Asha, Gaurav, Putra, Mrityu, Labdhan, like this, Vivaha, marriage. So, like this, they cover the different aspect of the life. And there are large number of sahem, and basically, many times you find these 50 sahem actually. So, how do we calculate these points? And these points, as I told you, we calculate in the birth chart also and in the annual chart also. Now, there is a formula, the formula for calculating each of the sahem. And they depend on whether Vars Pravesh is during the day or night. As far as annual horoscope is concerned, if you want to calculate these points, so formulas are based on the time of Vars Pravesh. If Vars Pravesh is during day, we use different formula. If Vars Pravesh is during night, we will use different formula. And now, because a large number of sahem, so what they say, there's no need to see all the sahem. Only relevant sahem at that particular age are to be taken into account. Suppose I'm talking of 35 or 40 years of age. Naturally, I'm not concerned with the Vidya sahem or Vivaha sahem and all those sahems. So what are important at that particular age of life? Only those sahem we need to consider, not all the sahem. And what are the formulae for calculating? And these sahems are also calculated in the software actually. For example, this Punya sahem. Punya sahem is supposed to be the most important sahem in that annual chart as well as in the birth chart also. Punya sahem formula, for example, is this like if Vars Pravesh is during daytime, we see the longitude of moon minus longitude of sun plus longitude of ascendant. If Vars Pravesh is during night, then the formula is longitude of sun minus longitude of moon plus longitude of ascendant. Similarly, Vidya Sahem. Vidya Sahem means for acquiring knowledge or going for higher education. And Guru Sahem is basically concerning with the Guru or preceptor. So if the birth is during daytime, it is longitude of sun minus longitude of moon plus ascendant, same thing. If birth is during night, then formula is this one, same formula. Yash Sahem, whether you will get a fame in that year or not. So formula is this: if the Graha is the Vars Pravesh is during daytime, the longitude of Jupiter minus longitude of Punya Sahem plus ascendant.
So like this, we have different formulae for calculating the different types of Sahem. So these are Is different it formulas. calculated in the It's all, software also? yeah, it's already there in the software. It's already there in the software. So what they say that the formula is basically this: A minus B plus C. You see all the formula, they indicate the same thing: A minus B plus C, A minus B plus C, A minus B plus C. Right? So they are based on this formula, A minus B plus C. And what they say, if the C falls between B and A, if C falls, this planet falls between this and this planet, then whatever value we get from this formula, we use that indicate the Sahem. But if C does not fall between B and A, then we add one more sign in that, and that will give the value of Sahem. So example, let's say ascendant is this one, moon is this one, sun is this one, Saturn, and but the Earth's previous is during daytime. So Purni Sahem is moon minus sun plus ascendant. So we have added this longitude of moon minus longitude of sun plus longitude of this. Now we have to see whether this C falls between B and A. C is this one and B is this one, A is this one. So we start from B, that is 4th sign, the 5th sign, 6th sign, 7th sign will come, then this sign will come. So we will say that C is falling between B and A. So whatever is the value, that will give the value of Sahem. And for example, in this case, Raja Sahem, Saturn minus sun plus ascendant. So Saturn is this one, sun is this, ascendant is this, so we get this. So now you see whether C is falling between B and A. Is it falling? C is 7th sign, B is 4th sign, and this is 6th sign. So this sign is not between these two. This sign, this longitude is not between these two longitude, because this ends at 6 and this is 7. So that's why we have to add one more sign to whatever we get in the value, 9, 22, 49. So that will be 10, 22, 49. So this is how we calculate this longitude of Sahem for each aspect of the life. Now same thing. It says that result of Sahem. Uncle, just to cannot be- clarify, in Ji. that we are looking at the degrees of A and B and C, and then saying C is C between A and B, is it? Correct, correct. Okay. These are the different points of the zodiac. So Yeah, naturally, got it. we want to see whether C is falling between B and A or not. Got it. So result of the Sahem cannot be analyzed unless these are considered simultaneously in the birth chart. Let's say some Mrityu Sahem is there in the annual chart, but as I told you, if there is no indication in the birth chart, then that is not correct. Actually, the Mrityu will not take place. But it says that you always analyze along with the birth chart. If there is an indication in the birth chart also, in the annual chart also, then only that thing is likely to happen. Otherwise, it will not. So what we do, they say that's why you calculate the Sahem in the birth chart also. And now most of the people, they have started calculating Sahem in the birth chart also, and they make very good predictions with the help of Sahem in the birth chart also. It says that only those Sahem which are strong in the birth chart can produce result during a year when they are strong in the annual chart also. Naturally, we have to give preference in the birth chart. There has to be some strong indication in the birth chart, and if there is a strong indication in the annual chart, then that event may take place. Sir, do we use these? Sir, do we use these only in the birth chart also? Pardon? Sir, do we use these only in the birth chart also? Yeah, now the people have started using this Sahem in the birth chart also. Okay, no, मतलब only सिर्फ birth chart में, annual chart में नहीं use करते अगर हम तो in general एक life में prediction करने के लिए। बिल्कुल, अगर हमको prediction करना है तो पहले आपको birth chart में भी देखना पड़ेगा और annual chart में भी देखना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से मतलब एक कंफर्म करना चाहिए कि birth chart में है और annual chart में है, तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए birth chart में नहीं है और annual chart में है तो कोई फायदा नहीं इसका।
और सर अगर अदर वे राउंड हो कि बर्थ चार्ट में हो लेकिन एनुअल चार्ट में ना हो, हाँ, तब भी तभी भी नहीं होगा? होगा, then it will not happen actually, ओके ओके then it will not सर happen. बट कोई पर्टिकुलर चीज बर्थ चार्ट में है, बट जो उससे रिलेटेड, जैसे हमें लग रहा है कि कोई भी प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है तो उस कॉम्बिनेशंस का जब टाइम आएगा तब वो इवेंट हो सकती है, हाँ, बट जो दशा चल रही है वो उन प्लैनेट से रिलेटेड ही नहीं है, या वो दशा उन हाउसेस से रिलेटेड नहीं है, बट इसमें वर्षफल में दिखा रहा है कि वो इवेंट इस साल हो सकती है, तो फिर हम कैसे जज करेंगे उसे? थोड़ा नहीं कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाएगा? नहीं, कैसे बताइए मुझे? मतलब सर दशा जो चल रही है वो उस इवेंट से रिलेटेड ही नहीं है ना, हाँ, ठीक तो है। वो उस हाउस से कंसर्न है। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जिस वो इवेंट इवेंट, यही मैं कह रहा हूँ कि जो एनुअल चार्ट है दैट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द बर्थ चार्ट, दैट इज जस्ट ए मैग्निफाइड व्यू ऑफ द बर्थ चार्ट। तो अगर कोई इवेंट उसमें इंडिकेटेड है ही नहीं बर्थ चार्ट में, तो लगने एनुअल चार्ट में इंडिकेटेड भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो नहीं होगी। बेसिक है कि बर्थ चार्ट में उसका इंडिकेशन जरूरी है पहले, सिर्फ एनुअल चार्ट में इंडिकेट होने से नहीं होगा जब तक बर्थ चार्ट में ना हो। मीन्स जो दशा वगैरह चल रही है वो मतलब इवेंट तो है इवेंट देखिए, चार्ट में इवेंट प्रॉमिस। का, हाँ, फॉर प्रॉमिस जो है, एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल किसी की मैरिज होनी है, ये चार्ट में है, उसमें कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है कि मैरिज नहीं होनी है, किस ठीक चार्ट है, में, बट किस चार्ट में? बर्थ चार्ट में अच्छा, ठीक है, बर्थ चार्ट में प्रॉमिस है मैरिज का उस साल, ठीक है। नहीं, उस साल नहीं, मतलब मैरिज होनी है किसी पर्सन की अच्छा, अकॉर्डिंग टू बर्थ चार्ट, कोई भी ऐसा योग नहीं है कि हम्म, जिसके अकॉर्डिंग हमें लगे कि मैरिज नहीं होनी है। हम्म, नाउ वी हैव टू सी कब होनी है, तो उसके हम्म, लिए फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं अभी तक कि हम पहले दशा देखेंगे, उससे बिल्कुल, रिलेटेड दशा और ट्रांजिट अगर फेवरेबल हैं या नहीं है, और हम्म, उसके अकॉर्डिंग बाय चांस अगर वो अभी इस साल में, मतलब हमें लग रहा है दशा एंड ट्रांजिट के अकॉर्डिंग ये फेवरेबल नहीं है, बट ठीक अगर है, हम जब ये वार्षिक वाला देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग है कि इस साल में हो सकती है, हाँ। देखिए, अगर तो आपको इसका कैसे बिल्कुल, हम हाँ, इंटरप्रेट अगर आपको करेंगे? बिल्कुल श्योर है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्लैनेट दशा एंड ट्रांजिट कि इस साल में मैरिज नहीं होनी चाहिए, तो एनुअल चार्ट कुछ भी इंडिकेट करे मैरिज नहीं होगी। बट अगर थोड़ा सा भी ओके, वो इंडिकेशन, दैट हाँ, विल सुपरसीड, बर्थ चार्ट या विल सुपरसीड। या बट थोड़ा सा भी अगर इंडिकेशन मिलता है बर्थ चार्ट से एंड एनुअल चार्ट कंफर्म्स दैट, तो फिर 100% हो जाएगी। तो बर्थ चार्ट तो वही है, जैसे हम डिविजनल चार्ट देखते हैं कि जब तक बर्थ चार्ट में इंडिकेशन नहीं होता, डिविजनल चार्ट में कोई भी इंडिकेशन क्यों ना हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो सेम थिंग वी अप्लाई हियर, ये एनुअल ओके, चार्ट कोई अलग नहीं है, दिस इज ओनली ए मैग्निफाइड व्यू ऑफ द बर्थ चार्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, दैट्स ऑल। तो कोई अगर इंडिकेशन अगर उसमें नहीं है, ओके अगर, सर। हाँ, बर्थ चार्ट में, तो फिर एनुअल चार्ट कुछ भी इंडिकेट करे वो नहीं हो सकता। Then only those Saturn which is, ये तो हमने कर लिया, no relevance in trying to analyze those SAM in the annual chart which are devoid of strength in the birth chart. Again same thing, अगर उनकी strength birth chart में ही कम है तो annual chart में कितने भी strong क्यों ना हो, उसका कोई relevance नहीं होगा, क्योंकि ये भी indicate यही करता है कि जो basic chart है वो birth chart है, that has to be given precedence over the annual chart. It says Saham becomes strong in the following cases. Saham Lord is exalted. Saham Lord means the sign you got of the Saham, if the Lord of that sign is exalted, own sign in the birth chart as well as in the divisional chart, or is located in the benefic houses. तो उस केस में अगर हम देखते हैं कि जो हमारा सहम का पॉइंट आया है उसका लॉर्ड अगर एग्जॉल्टेड है या अपने साइन में है बर्थ चार्ट में, या उसका डिविजनल चार्ट में प्लेसमेंट अच्छा है, तो हम कहेंगे कि वो जो सहम है या लॉर्ड ऑफ सहम है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग सहम एक्चुअली। या फिर सहम इज एसोसिएटेड विद द फ्रेंड और विद द नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट और विद द ईयर लॉर्ड। नाउ ईयर लॉर्ड की इंपॉर्टेंस आ गई, अगर सहम के साथ ईयर लॉर्ड भी प्लेस्ड है या बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है तो उस टाइम भी हम कहेंगे कि सहम की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। या सहम लॉर्ड आस्पेक्ट द सहम, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर अपना साइन अपने हाउस को, प्लैनेट अगर अपने साइन को एस्पेक्ट कर रहा है तो इट बिकम्स ए राजयोग कारक कंसर्निंग दैट हाउस। तो वही चीज यहाँ भी है कि सैम का लॉर्ड सैम को एस्पेक्ट कर रहा है या उसको साथ है या लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है।
तो उस केस में भी जो हम कहेंगे कि सहम जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब इनके रिजल्ट कैसे मिलते हैं? स्ट्रांग एंड वीक सहम गिव बेनिफिक एंड मैलिफिक रिजल्ट्स ड्यूरिंग दशा ऑफ देयर लॉर्ड। जब उनके लॉर्ड की दशा ऑपरेट होगी तब आपको उनके रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सहम तो एक पॉइंट है आपका जोडियक का, तो उस जो भी राशि में पड़ेगा जब उसके लॉर्ड की दशा ऑपरेट होगी तब आपको उस सहम के रिजल्ट मिलेंगे। फिर कहा सहम फॉर शत्रु, ये जो मेलिफिक सहम है, शत्रु है, रोग है, मृत्यु है, दे आर नॉट गुड इफ दीज आर स्ट्रॉन्ग, दे शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ज्यादा कष्ट होगा आपको जो है। तो ये कहा कि इन चीजों की जो सहम है वो अगर स्ट्रॉन्ग ना हो तो अच्छा है, या ये अगर ये सहम वीक होते हैं या इन डेबिलिटेशन में होते हैं तभी उनको बेटर माना जाता है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि 6, 8, 12 हाउसेस स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए क्योंकि नेगेटिव है, तो वही चीज ये सहम हमारे नेगेटिव है, so we don't want them to be very strong in a particular area, जितना स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही नुकसान करेंगे। फिर कहा कि सहम इन द त्रिक हाउस, अगर जो पॉइंट हैं आपके सहम अगर वो एनुअल चार्ट में त्रिक हाउस में प्लेस्ड हैं तो दे अगेन गिव बैड रिजल्ट्स, उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं होते। फिर कहा कि सहम रिलेटेड बाय द कंजंक्शन और बाय एस्पेक्ट और बाय इत्साल विद इट्स ओन 8th लॉर्ड और विद द 8th लॉर्ड ऑफ एनुअल चार्ट इट बिकम्स ए वीक। मतलब सहम जो है अगर कंजंक्शन से या एस्पेक्ट से या इत्साल योग से अपने से 8th हाउस के लॉर्ड के साथ रिलेटेड है या एनुअल चार्ट के असेंडेंट के 8th हाउस के लॉर्ड, असेंडेंट से 8th हाउस के लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड है, तो वो जो है सहम वीक हो जाता है, फिर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। Now, Punya Saham has been given importance of every other thing. Punya is like our fortune. जैसे हम कहते हैं कि हमारा 9th हाउस या जो फॉर्चून होता है वो सर्वोपरि है। फॉर्चून अगर हमारा अच्छा है तो फिर हमें किसी भी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही सेम रोल जो है हमारे पुण्य सहम का भी है एनुअल चार्ट में। तो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पुण्य सहम इट एंश्योर्स ऑस्पिशियसनेस एंड प्रमोट्स वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। अगर आपका जो पुण्य सहम आया है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो नेचुरली इट इंडिकेट्स प्रोस्पेरिटी एंड वेल्थ ड्यूरिंग दैट ईयर। पुण्य सहम लोकेटेड इन द त्रिक हाउस इन द एनुअल चार्ट, अगर पुण्य सहम अगर त्रिक हाउस में लोकेटेड है तो इट्स बैड, एक्चुअली इट कॉजेस लॉस ऑफ नेम, फेम एंड वेल्थ। तो पुण्य सहम जो है जितना स्ट्रांग होगा उतना ही अच्छा है एनुअल चार्ट में, तो इसीलिए अगर त्रिक हाउस में प्लेस्ड है तो वो वीक हो जाता है, तो इसलिए आपको खराब फल देता है उसके। एसोसिएशन ऑफ बेनिफिक्स विद द पुण्य सहम इट बिकम्स स्ट्रांग, अगर बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है पुण्य सहम के साथ तो इट बिकम्स स्ट्रांग, सो इट गिव्स फॉर्च्यून एंड फेम। देन पुण्य सहम टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द रिजल्ट ऑफ अदर सहम, कि अगर पुण्य सहम आपका बहुत स्ट्रांग है, जैसे हमने कहा अगर भाग्य आपका बहुत स्ट्रांग है तो कोई हाउस कितना भी खराब हो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर है कि पुण्य सहम टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द रिजल्ट ऑफ अदर सहम। इफ पुण्य सहम इज वेरी स्ट्रांग, अदर सहम्स इवन इफ वीक दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनी हार्म। जैसे मान लीजिए कि पुण्य सहम बहुत अच्छा है और ये मृत्यु सहम वगैरह भी मान लो स्ट्रांग हो जाते हैं तो वो भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस तरह से भाग्य अगर किसी का भी अच्छा है तो कोई हाउस अगर वीक भी होता है तो उसका हमें खराब फल नहीं मिलता। तो वही चीज यहाँ पर है कि पुण्य सहम को हम बिल्कुल फॉर्च्यून की तरह ट्रीट करते हैं कि अगर पुण्य सहम बहुत स्ट्रांग है किसी भी हॉरोस्कोप में तो बाकी सहम अगर वीक भी होंगे तो उनकी वजह से जो खराब रिजल्ट मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे। तो पुण्य सहम विल टेक प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर सहम, एक्चुअली इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए कम से कम पुण्य सहम हम अपने नेटल चार्ट में भी निकाल सकते हैं। एनुअल चार्ट में तो ये सॉफ्टवेयर आपको मिल ही जाएगा, तो उससे एटलीस्ट टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट, सो दैट इंडिकेट्स योर फॉर्च्यून। तो जितना स्ट्रांग होगा पुण्य सहम उतना ही आपका जो भाग्य है वो अच्छा होगा। देन पुण्य सहम इसका मतलब सर जैसे फॉर एग्जांपल विवाह सहम है या पुत्र सहम है तो उससे हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये इवेंट इस टाइम पे होगा। हाँ, जैसे पुण्य सहम है इस साल, मान लीजिए सॉरी विवाह सहम है मान लीजिए जी सर। आपने देखा इस साल मेरी शादी होगी या नहीं होगी,
तो आपने देखा कि इस साल बहुत स्ट्रांग है विवाह सहम, हम्म, तो नेचुरली शादी होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। या रोग सहम है, रोग सहम उस समय स्ट्रांग आ रहा है, तो राइट नेचुरली राइट कोई हेल्थ की प्रॉब्लम उस टाइम हो सकती है। बट ये सब इंडिकेशन लग्न चार्ट में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लग्न चार्ट में तो डिनायल है उस इवेंट का और राइट एनुअल चार्ट में प्रॉमिस है, तो फिर वो नहीं होगा। उसका राइट इंडिकेशन लग्न चार्ट में जरूर होना चाहिए। ओके सर। देन पुण्य सहम इन डेबिलिटी मतलब वीक है अगर, इट न्यूट्रलाइजेस एनी बेनिफिक इफेक्ट दैट माइट बी इंडिकेटेड बाय अदर सहम इन स्ट्रेंथ। नाउ अगेन सी, आपके हाउसेस बहुत अच्छे अच्छे हाउस है, मान लीजिए 7th हाउस बहुत अच्छा है, 10th हाउस बहुत अच्छा है, भाग्य खराब है, 9th हाउस बेकार है, तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि भाग्य सर्वोपरि है। जब तक भाग्य आपका ठीक नहीं होगा तो जो भी हाउसेस इंडिकेट करते हैं कोई भी रिजल्ट वो आपको नहीं मिलते। और आपने उल्टा हमेशा देखा है कि 7th हाउस खराब है, 10th हाउस खराब है, लेकिन अगर 9th हाउस अच्छा है तो यू गेट एवरीथिंग इन द लाइफ। तो वही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि अगर पुण्य सहम वीक है तो इट न्यूट्रलाइजेस एनी बेनिफिक इफेक्ट विच अदर सहम्स में प्रॉमिस। तो पुण्य सहम का किसी भी साल या एनुअल चार्ट में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है अगर हमें अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं उस साल के लिए। जब तक पुण्य सहम स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हमें बाकी सहम कुछ भी रिजल्ट इंडिकेट क्यों ना कर रहे हो वो आपको नहीं मिलेंगे, जब तक कि पुण्य सहम स्ट्रांग नहीं है। पुण्य सहम इज सो इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक फॉर्च्यून आई एम सेइंग, लाइक 9th हाउस। 9th हाउस स्ट्रांग है तो सब कुछ ठीक है, बट 9th हाउस अगर वीक है तो स्ट्रांग होते हुए भी हाउस आपको उसका फल नहीं मिलता। Then strong well placed पुण्य सहम in the birth chart as well as in the annual chart। अब मान लीजिए इसमें भी birth chart में भी strong placement है और annual chart में भी बहुत अच्छा placement है, then definitely it will give you all everything what you need, wealth, success, prosperity, everything you get during that time। तो हमको ये देखना है कि हमारा birth chart में पुण्य सहम की क्या पोजीशन है और annual chart में पुण्य सहम की क्या पोजीशन है। अगर दोनों में बाय चांस किसी भी साल में अगर दोनों में स्ट्रांग पोजीशन है तो दैट ईयर इज डेफिनेटली वेरी गुड फॉर यू। एग्जाम्पल दिखा देंगे सहम सर, का? हाँ, मैं हाँ, इसका और इसमें बता रहा हूँ आपको, वो सॉफ्टवेयर गायब हो गया तो मुझे मैं नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा। जैसे बर्थ चार्ट है राजीव गांधी का, सर राजीव एक गांधी चीज पूछनी थी, बर्थ चार्ट में जो ये पॉइंट है ये तो फिक्स्ड रहता है ना? फिक्स नहीं है, पुण्य सहम, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, फॉर्मूला इज सेम। ओके पुण्य सहम हमें कहना है दिन का बर्थ है रात का बर्थ है, ओके so formula is longitude of moon minus longitude of sun plus ascendant. That formula, whether it is annual chart or birth chart, you can calculate in both the cases. नहीं ओके तो सर So साइन कौन सा आएगा फिर, इसमें कौन सा प्लेनेट आएगा? मतलब डिग्री है ये तो। मैं बताता हूँ, जी जैसे मान लीजिए राजीव गांधी का हॉरोस्कोप था, जी तो बर्थ चार्ट में उनका जो मून सन और जो असेंडेंट का लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, जी तो हमने क्या किया, पुण्य सहम हमें निकालना है। तो जी पुण्य सहम का फॉर्मूला है लॉन्गिट्यूड ऑफ मून माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ सन प्लस असेंडेंट। ये लॉन्गिट्यूड ऑफ मून है, लॉन्गिट्यूड ऑफ सन है, और इसमें हमने असेंडेंट जोड़ दिया। ऐड कर दिया, असेंडेंट हमने ऐड कर दिया। तो वी गेट दिस, whatever we get, this one we get 4 sin 27 degree 52 minutes, 4 sin 27 degree 52 minutes। और यहाँ पर देखिए कि C, whether C falls between B and A, Yes. C is 414, Yes. B is 43, A is 417, so naturally C falls between B and A। इन दोनों के बीच में ही है ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों के बीच में है। जी जी तो इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसको हम कंसिडर करेंगे, जो भी वैल्यू आई है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो इसमें देखिए कि पुण्य सहम कौन से साइन में आया, विच इज द साइन ऑफ पुण्य सहम, 4 कौन सा साइन है? लियो। 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 दिस इज 4 sin 27 degree 52 minutes, so this is not fourth sign, this is Leo sign, fifth sign। ओके तो हम कहेंगे कि जो पुण्य सहम है बर्थ चार्ट का, ये बर्थ चार्ट की बात कर रहे हैं, दिन का बर्थ है और बर्थ चार्ट का फॉल्स इन द लग्ना, ओके लग्ना। और वही जो सहम का जो पुण्य सहम निकाला था
it is with the Lord of Sahm. Lord of Sahm means कि इनके जब राजीव गांधी का हमने हॉरोस्कोप देखा था तो उसमें आपने देखा था कि 5 नंबर साइन है, 5 नंबर साइन है जो असेंडेंट है, और वहां पर काफी प्लैनेट प्लेस्ड भी हैं उस पोजीशन में जो है. लेट मी सी अगर वी कैन, एक मिनट, अगर वी कैन, आई कैन हैव एन एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर. अंकल आपके पीपीटी में भी राजीव गांधी का चार्ट था. हाँ नहीं, उसमें एक मिनट में उसका चार्ट ही निकाल लेते हैं ना तो अच्छा रहेगा. ओके, चलिए हो गया. देखिए आपने ये सन, मून और असेंडेंट का ये हमने लॉन्गिट्यूड लिया था यहाँ पर. ऑल आर इन द लियो साइन. तो यहाँ पर जो पुण्य सैम आया वो भी 5th साइन में आया. यहाँ जो हमने देखा जो पुण्य सैम निकाला वो भी इसी राशि में है. एंड दैट इज विद द लॉर्ड. लॉर्ड भी उसके साथ ही बैठा हुआ है. उसका जो पुण्य सैम का लॉर्ड है वो भी उसके वहीं पर बैठा हुआ है. असेंडेंट में है. इट इज एसोसिएटेड विद ऑल 3 बेनिफिक प्लैनेट्स. It is associated with all 3 benefic planet. तो क्या इंडिकेट करता है कि इस आदमी का भाग्य बहुत अच्छा है, क्योंकि पुण्य सहम इतना स्ट्रांग है बर्थ के टाइम. बर्थ के टाइम पुण्य सहम इतना स्ट्रांग है. और वैसे भी देखो कि अगर हम 9th हाउस को भी कंसिडर करेंगे यहाँ पर तो इसका लॉर्ड योग कारक हो गया. मार्स एस्पेक्टिंग इट्स ओन साइन, जुपिटर एस्पेक्टिंग दिस साइन, एंड देयर इज नो एस्पेक्ट ऑफ एनी मेलिफिक प्लैनेट. So otherwise also 9th house is very strong here. And पुण्य सैम भी देखिए कितना स्ट्रांग है यहाँ पर अपने ही राशि में, उसका लॉर्ड साथ में. And not only that lord but associated with all benefic planets. Associated with all benefic planets. तो यही कह रहा है यहाँ पर. The Punya Sam of the birth chart falls in the Lagna, associated with the Lord of Sam, that is the Sun, and with all natural benefic planets. All natural benefic planet. तो हम कहेंगे कि पुण्य सैम जो बर्थ चार्ट में है बहुत स्ट्रॉन्ग है. इससे स्ट्रॉन्ग क्या होगा? Associated with all benefic, associated with its own Lord, associated in the ascendant. तो इससे बेटर तो कोई नहीं हो सकता. And when he became the prime minister in the 41st year, 41st year, उस टाइम जो निकाला जो पुण्य सैम, that was this one, 4, 15, 16. और इसमें अगर हमने जो पहले निकाला था शायद 41st ईयर का चार्ट, ये वाला, ये देखिए, दिस वाज द फर्स्ट, दिस 41st ईयर चार्ट. उसमें हमने कहा था कि जो वर्सेस वगैरह है, सन है अपने साइन में है, वेरी वेल प्लेस्ड. और यहाँ देखिए जो पुण्य सैम आया वो भी 5th साइन में आया. जो 41st ईयर का पुण्य सैम आया वो 5th साइन में आया. सन उसका लॉर्ड वहीं पर है, एसोसिएटेड विद अगेन ऑल बेनिफिक्स. मरकरी, वीनस एंड जुपिटर इज आल्सो एस्पेक्टिंग. वही पोजीशन है जो लग्न में थी बर्थ टाइम में, वही पोजीशन यहाँ रिपीट हो गई एक तरह से जो है. एंड दैट टू इन द 10th हाउस विच इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन. तो जब इतना स्ट्रॉन्ग पुण्य सैम हो गया और 10th हाउस से रिलेटेड हो गया
और बर्थ चार्ट में भी उतना ही स्ट्रॉन्ग पुण्य सहम है। सन इज अ मेन प्लैनेट, वर्सेस भी है, तो नेचुरली सन से कनेक्टेड, प्रोफेशन से कनेक्टेड इस टाइप के रिजल्ट तो मिलेंगे। सडनली बिकम्स ए प्राइम मिनिस्टर, सो दैट मेक्स द डिफरेंस, दैट इज द वैल्यू ऑफ सहम, कि आपने किसी भी पर्टिकुलर ईयर का सहम निकाला, बट बशर्ते कि वो सहम जो है लग्न में भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और आप सब लोग देख भी सकते हैं अपना जो भी हॉरोस्कोप है, बर्थ चार्ट है, तो उसमें देखिए कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले से कि जो पुण्य सहम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पुण्य सहम जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, और ये आपका फॉर्चून है, भाग्य है। तो पुण्य सहम हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि सारे जो वर्सेस भी सन हो गया था और पुण्य सहम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है उस केस में। तो वही चीज हो गया। और इसमें ये भी देखिए कि पुण्य सहम बहुत स्ट्रॉन्ग है, एसोसिएशन विद इट्स ओन लॉर्ड, ऑल बेनिफिक प्लैनेट, जुपिटर भी देख रहा है उसको, एंड इट एस्टैब्लिशेस इट्स साल योगा विद द लग्ना लॉर्ड, मार्स एंड जुपिटर, ये भी है, तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो नेचुरली जो रिजल्ट मिले वो भी ऐसे ही मिले। Now, some general principles. Actually, SAM is very, very important. And nowadays, I've seen a lot of people, they make prediction only on the basis of SAM. So they find out these points, so they can pinpoint the event also, what type of event is likely to take place. So it has become very important because we are using this Tajik Paddhati, of course, in our birth chart also. To be used logically. To be used logically. मान लीजिए कि विवाह का सहम बहुत स्ट्रांग है इन ए पर्टिकुलर ईयर, बट विवाह की एज नहीं है आपकी उस टाइम जो है, तो नेचुरली उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यू कैन नॉट से कि मैरिज होगी, क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है उस टाइम। या आप 50 साल के हैं और एजुकेशन सहम बहुत स्ट्रांग आ रहा है, तो नेचुरली वो भी नहीं होगा पॉसिबल। उसको फिर आपको लॉजिकली या अपना प्रूडेंस उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। देन टू बी सीन इन बोथ जन्म चार्ट एज वेल एज द वर्ष कुंडली, और जब दोनों में ही अगर स्ट्रॉन्ग है तभी रिजल्ट आपको मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तीसरा कहा कि इफ द लॉर्ड ऑफ द सहम फॉर्म्स इट्स साल विद द कार्येश और विद एनी बेनिफिक प्लैनेट, naturally it becomes very fruitful in a particular year. Suppose you want to know कि मेरा प्रमोशन होगा या नहीं होगा इस साल, तो उस साल आपने देखा कि जो सहम का लॉर्ड है, अगर वो कार्येश मतलब 10th हाउस के लॉर्ड के साथ इस साल योग बना रहा है, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। या सहम जो है बेनिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है और जो 10th हाउस के साथ भी एसोसिएटेड है। या आपने कहा मैरिज मेरी इस साल होगी या नहीं होगी, तो आपने सहम को देखा मैरिज के और देखा कि अगर वो इस साल योग बना रहा है मैरिज के हाउस के लॉर्ड के साथ, तो मैरिज हो जाएगी। या वो बेनिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है उस साल, तो भी जो है वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। पुण्य सैम इज द किंग ऑफ ऑल सैम्स, इट गेट्स प्रेसिडेंस ऑफ ओवर ऑल अदर सैम्स, इट इज सो इम्पोर्टेंट, इट इज जस्ट लाइक द हाउस ऑफ फॉर्च्यून, to be considered like Munta, etc. Whatever is the value of Munta, because Munta is an important point. Similarly, the Punya Saham is also very important point. The result of the Saham fructify in the Mudda Dasha of Sahamesh. We have to see the Lord of Saham. So naturally, if the Dasha is operating or the time when Dasha will operate, उस टाइम आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। और during Dasha of a planet forming its Sal with the Sahamesh, if any planet is forming its Sal with the Lord of Saham, then also you may get the, if that Dasha of the planet is operating, then also you may get the result of Saham actually. तो सर इसमें विंशोत्तरी दशा वाली दशा की मेंशन नहीं है, मुद्दा दशा में देखना है ये हमें। Naturally, एनुअल चार्ट के लिए हम मुद्दा दशा ही देखते हैं, विंशोत्तरी मुद्दा दशा जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। राइट सर। Now, we have large number of Tajik yogas.
which we also utilize in this annual horoscopy. बहुत सारे हम लोगों ने दो डिस्कस किए हैं, इत्साल योग और इशरफ योग। दो योग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इत्साल योग और इशरफ योग। वो हम लोगों ने देखा था कि कैसे बनते हैं, क्योंकि जो ताजिक एस्पेक्ट हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर आपस में दो प्लैनेट 3, 5, 9, 11 पोजीशन में है तो फ्रेंडली एस्पेक्ट होता है। अगर दो प्लैनेट आपस में 1, 4, 7, 10 पोजीशन में है तो एनिमी एस्पेक्ट होता है, और बाकी पोजीशन में 2, 6, 8, 12 में न्यूट्रल होता है, कोई एस्पेक्ट नहीं होता। और जहाँ तक इसमें हम लोगों ने जो दीप्तांश को कंसिडर किया था कि हर प्लैनेट का एक दीप्तांश होता है, और दो प्लैनेट के बीच में जब भी एस्पेक्ट होता है जब उन दोनों प्लैनेट के डिग्री में जो डिफरेंस होता है दैट इज विद इन द एवरेज ऑफ द दीप्तांश ऑफ द टू प्लैनेट। जब भी हम एस्पेक्ट कंसिडर करेंगे, अगर दो प्लैनेट के लॉन्गिट्यूड में डिग्री में जो दीप्तांश के एवरेज से ज्यादा डिफरेंस है तब वो एस्पेक्ट नहीं होगा। और जहां तक स्पीड की प्लैनेट की थी हमने, जो Moon is the fastest, then Mercury, then Venus, then Sun, then Mars, then Jupiter. This is the speed of the planet from highest to the lowest. और हमने किया था कि जो इत्साल योग होता है उसके लिए क्या क्या कंडीशन थी। पहले तो प्लैनेट का आपस में एस्पेक्ट होना चाहिए, दो प्लैनेट के बीच में आपस में एस्पेक्ट होना चाहिए। दूसरा था कि उनकी जो डिग्री है वो विद इन द एवरेज ऑफ दीप्तांश ऑफ द टू प्लैनेट होनी चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है दैट शुड बी बिहाइंड द स्लो मूविंग प्लैनेट। जो भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, फास्ट मूविंग हम इसमें से डिसाइड करेंगे स्पीड के हिसाब से कि फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट के पीछे होना चाहिए। और उससे भी जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि जो डिग्री है फास्ट मूविंग प्लैनेट की वो कम होनी चाहिए, और जो स्लो मूविंग प्लैनेट आगे है उसकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि वो डिग्री वाइज उसको आगे चल के पकड़ ले। तो ये चार कंडीशन है। चार कंडीशन जब एप्लीकेबल होती हैं तब इत्साल योग बनता है। वो भी हमने डिस्कस किया था कि इत्साल योग 3 टाइप का होता है, एक प्रेजेंट इत्साल, एक पूर्ण इत्साल, और एक तीसरा क्या था, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पूर्ण इत्साल। भविष्य नहीं, प्रेजेंट था, पूर्ण था, जो और फ्यूचर का भविष्य। फ्यूचर इत्साल था। तो प्रेजेंट का मतलब, तो अगर ये चारों कंडीशन मीट करती हैं तो प्रेजेंट इत्साल होता है। पूर्ण इत्साल हम जब कहते हैं कि जब दो प्लैनेट की डिग्री का जो डिफरेंस है दैट इज विद इन 1 डिग्री, तब हम कहेंगे पूर्ण इत्साल हो रहा है। और भविष्य इत्साल क्या होता है कि आज की डेट में तो एस्पेक्ट नहीं है आज की डेट में एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है पीछे, जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो एकदम एंड ऑफ द साइन पर है, 28 डिग्री 29 डिग्री पर है। तो जैसे ही वो साइन चेंज करेगा, जैसे ही वो प्लैनेट साइन चेंज करेगा, फास्ट मूविंग है तो एक आध दिन में साइन चेंज कर देगा, और जैसे ही साइन चेंज करेगा तब वो एस्पेक्ट उसका हो जाता है, तब वो इत्साल योग बनाएगा। तो उसको हम कहते हैं भविष्य इत्साल योग। तो तीनों में से कोई भी इत्साल योग हो तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन कि वो आपका काम हो जाता है। और इसमें भी था कि अगर रेट्रोग्रेशन में है दो प्लैनेट तब क्या होगा, तो उसमें ये कंडीशन है 3। अगर फास्ट मूविंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, पीछे है वो, तो नेचुरली वो पकड़ेगा तो है ही नहीं, क्योंकि वो पीछे जा रहा है, तो इत्साल योग बना ही नहीं, तो हम कहेंगे कि इत्साल योग फ्रैक्टिफाइड नहीं हुआ। दूसरा, अगर स्लो मूविंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो वो और पीछे की तरफ जा रहा है और फास्ट उसको जल्दी पकड़ लेगा, तो ये जो इत्साल योग बनेगा दैट विल बिकम ए स्ट्रॉन्गर इत्साल योग। अगर मान लीजिए कि बोथ आर रेट्रोग्रेड या कंबस्ट हैं या वीक हैं या अफिलिक्टेड हैं, तभी भी जो आपको इत्साल योग के रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, इत्साल योग के रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो यही है कि इत्साल अगर आपका लग्नेश के साथ, वर्सेस के साथ और विद द लॉर्ड ऑफ किसी भी अच्छे हाउस के साथ बनता है तो यू गेट गुड रिजल्ट्स। लेकिन अगर इत्साल योग बन रहा है विद द त्रिक हाउस देन definitely the results will not be good actually. So this was basically इत्साल योग। इसका उल्टा जो है वो इशरफ योग था। इशरफ योग कि अगर
जो स्लो मूविंग प्लैनेट है वो पीछे है, फास्ट मूविंग प्लैनेट आगे है। तो जो योग बनेगा इशरफ योग बनेगा, फिर वो नेगेटिव योग है, उसमें फिर आपका काम नहीं होता। उसके अलावा नाउ देयर आर 14-15 अदर योगाज आल्सो, सो दैट आल्सो वी कैन डिस्कस। One is the Iqbal Yoga, and this all relate to the annual chart only. All planets in the annual horoscopy are in the Kendra or the Panfada houses. What are Panfada houses? भूल गए आप लोग? Panfada is succeedent houses. So Kendra are 1, 4, 7, 10 houses. We call them quadrant houses. And Panfada is succeedent houses, that is 2, 5, 8, 11. 2, 5, 8, 11. And 3, 6, 9, 12, they are apocalypse, or we call them cadent houses. तो अगर सारे planet annual chart में केंद्र और पनफर हाउसेस में ही हैं, मतलब 1, 4, 7, 10 या 2, 5, 8, 11 इन हाउसेस में हैं, तो कहते हैं कि जो योग बनता है उसको हम इकबाल योग कहते हैं। And this is a very, very auspicious yoga. It indicates positive results during that year actually. So this is इकबाल योग। फिर है इंदुवर योग। इंदुवर मीन्स कि सारे प्लैनेट अपोक्लेम हाउस में, केडेंट हाउसेस में चले जाएं, 3, 6, 9, 12। तो कहते हैं कि ये एक नेगेटिव योग है इंदुवर योग, ये इनऑस्पिशियस योग है, इट इंडिकेट्स इनऑस्पिशियस इवेंट इन दैट पर्टिकुलर ईयर। सो इकबाल योग पॉजिटिव है, एंड दिस इंदुवर योग इज नेगेटिव योग। Then Ishraf we have discussed. Ishraf we call Mushrif also. Then next is the Nakat Yoga. Nakta Yoga. Now, Tajik aspect does not exist between two planets. There is no aspect between the two planets. But the third fast-moving planet, एक तीसरा planet है, which is in such a position that it forms itself with both the planets. हमने देखा कि जो लग्नेश और कार्यश है उनका आपस में इत्साल योग नहीं बन रहा है, लेकिन एक तीसरा प्लैनेट है फास्ट मूविंग प्लैनेट, वो इस पोजीशन में है कि वो दोनों प्लैनेट के साथ इत्साल योग बना रहा है, दोनों प्लैनेट के साथ इत्साल योग बना रहा है। तो क्या होता है कि जो थर्ड प्लैनेट है वो एक तरह से मीडियम बन गया और वो उन दोनों प्लैनेट का उसने इत्साल योग बनाने में सहयोग दिया, इत्साल योग बनाने में सहयोग दिया। तो सेम पोजीशन हैपेंस हियर आल्सो, that indicate that your work will be done, but you may have to take the help of somebody. जो थर्ड प्लैनेट आया तो you may have to take the help of some other person, क्योंकि इत्साल योग जो बना वो आपस में नहीं बना बट तीसरे प्लैनेट की मदद से बना, और तीसरा प्लैनेट क्योंकि दोनों के साथ इत्साल योग बना रहा है तो इसलिए ये इंडिकेशन मिलता है कि आपका काम होगा, बट you need the help of some other person also. Then Yam Yoga. This is again a variety of this only. The difference is in the third planet. Here the third planet is a fast moving planet. Third planet is the fast moving planet. But here third planet is a slow moving planet. यहाँ पर fast moving planet वो बना रहा था इत्साल योग, यहाँ slow moving planet इत्साल योग बना रहा है। तो इसका मतलब जब ये क्योंकि स्लो मूविंग है, इसका मतलब कंप्लीशन ऑफ द टास्क विद द हेल्प ऑफ वेरी पावरफुल और वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन। उसमें आपको बहुत किसी की बहुत ही पावरफुल आदमी की मदद लेनी पड़ेगी जब आपका काम होगा। तो ये दो योग हैं, पॉजिटिव योग हैं दोनों, बट ओनली इट इंडिकेट बिकॉज इस साल में तो अपने आप काम हो जाता है, बट यहाँ पर आपको किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लेनी पड़ेगी, तब वो काम आपके करने में सहायता करेगा। Manau Yoga. It says that two planets forming Itzal Yoga. दो प्लैनेट जो है वो इत्साल योग बना रहे हैं, but third malefic planet also conjoins one of them or gives an inimical aspect to that planet at the same time. और उसका वो प्लैनेट जो है वो दीप्तांश रेंज में भी है।
कि दो प्लैनेट के बीच में इत्साल योग तो बन रहा है, लेकिन जो तीसरा प्लैनेट है वो किसी एक प्लैनेट के साथ है, वो मेलिफिक प्लैनेट है या मेलिफिक एस्पेक्ट है। और एस्पेक्ट नेचुरली जब दीप्तांश रेंज में होगा जब भी हम उसको एस्पेक्ट कहेंगे। तो उस तीसरे मेलिफिक प्लैनेट की वजह से जो इत्साल योग बन रहा था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इत्साल योग के जो रिजल्ट है वो आपको फिर नहीं मिलते हैं। तो दिस इज योर मनाऊ योग। देन कंबुल योग। कंबुल योग क्या है? दो प्लैनेट इत्साल योग बना रहे हैं एंड मून आल्सो फॉर्म्स एन इत्साल विद वन ऑफ देम। दो प्लैनेट के बीच में तो इत्साल योग बन ही रहा है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक प्लैनेट के साथ मून का भी इत्साल योग बन रहा है। तो नेचुरली इट बिकम्स मोर पावरफुल, मोर ऑस्पिशियस हो जाता है। तो बीइंग मोर देन वन इत्साल, इट रेजेस द लेवल ऑफ वर्ष कुंडली। It indicates all positive events in the Varsh Kundli, and all three planets become capable of giving good results depending on the quality and all those things. So you get good result. इसमें सिर्फ यही था कहा कि दो प्लैनेट के बीच में इत्साल योग बन रहा है और जो एक प्लैनेट है उनमें से उसके साथ मून भी इत्साल योग बना रहा है। तो आपका जो इत्साल योग बन रहा था वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, रिजल्ट आपको और ऑस्पिशियस मिलते हैं एंड इट रेजेस द लेवल ऑफ योर वर्ष कुंडली। तो अगर तीनों प्लैनेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और तीनों प्लैनेट जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो ये एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे अगर प्लैनेट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, प्लैनेट इन एक्सल्टेशन और द ओन साइन। तो नेचुरली यू गेट वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, वेरी एक्सीलेंट रिजल्ट्स। मीडियम रिजल्ट, प्लैनेट अपने हुद्दा में, दृष्कांश या नवांश में है। देन न्यूट्रल, प्लैनेट इन द साइन ऑफ न्यूट्रल प्लैनेट, और पुअर, एक प्लैनेट डेबिलिटेशन में है या एनिमी साइन में है। तो depending on this you get result, but definitely if planets are strong then this Itzal yoga becomes more powerful. Next is the Gary Kambol yoga. Gary means again another. So Itzal between Lagnesh and Karyesh. जो इत्साल योग बन रहा है लग्नेश और जो सिग्निफिकेटर हाउस है उसके बीच में बन रहा है। Moon is at the end of the Rashi and not within the Tajik aspect of Itzal forming planet. Moon जो है किसी और राशि में है, लेकिन जो ताजिक aspect जो है वो इन planet के साथ नहीं हो रहा है। Moon also weak, but as soon as the moon enters the next sign, it forms Itzal with another planet and also forms Itzal with these two planets. So naturally, ये जो योगा इस तरह का जो बनता है उसको हम गैरी कंबुल योग कहते हैं और इट गिव्स ऑस्पिशियस रिजल्ट एंड टास्क इज डन विद द हेल्प ऑफ सम इन्फ्लुएंशियल पर्सन। यहाँ क्यों कहा? क्योंकि मून वीक था पहले, तो इसकी वजह से काम होने की संभावना नहीं थी, बट जैसे ही क्योंकि मून एंड ऑफ द राशि है तो उस और जैसे ही राशि क्रॉस करेगा तब इत्साल योग बनाएगा। तो इसको मतलब ऑस्पिशियस तो है, बट यू मे हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम अदर पर्सन आल्सो। Khalasar Yoga. If Itzal between Lagnesh and Karyesh, लेकिन मून वीक है and also not forming Itzal with any of the planet, तो मून का भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। जैसे हम लग्न को स्ट्रॉन्ग कहते हैं तो ऐसे ही मून भी अगर कभी वीक होता है तभी भी ये काम आपका नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लग्नेश और कार्येश के बीच इत्साल तो हो रहा है, लेकिन मून जो है बहुत वीक प्लैनेट है, तो उस केस में ये जो फल आपको मिलते हैं इत्साल योग के वो नहीं मिलते। So this is known as a Khalasar yoga. Then Ruddha yoga. Ruddha yoga is any planet forming Itzal, but one of them is combust, debilitated in the enemy sign, or placed in the Trik house, or conjoined or aspected by malefic planet. So it ruins the result of इत्साल योगा। वही चीज है कि अगर दो प्लैनेट के बीच में इत्साल योग बन रहा है और उनमें से एक प्लैनेट जो है बहुत ज्यादा वीक है, कंबस्ट है, डेबिलिटेटेड है, एनिमी साइन में है, त्रिक हाउस में है, या उसके साथ मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो रहा है, तो फिर आपको उस इत्साल योग के रिजल्ट नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट इज दुष्फली कुट्टा योगा।
a Sal between Lagnesh and Karyesh. There is a Sal between Lagnesh and Karyesh. Slow moving planet is strong, but fast moving planet is weak in the Panchvargi bal. Whatever we calculated, 5 type of strength. So if the fast moving planet is the one which is behind the slow moving planet, is a weak planet, then it indicates that the task will be done after a lot of problems, hurdles, and running about. So this is Dusfali Kutta Yoga. But no planet should be retrograde. No planet should be combust, or no planet should be in the inimical sign. Naturally, if any of the planet is weak, or if any planet is the back planet is retrograde, then also you will not get the result actually. Then Kutta Yoga. Kutta Yoga is key. We have seen Lagnesh, we have seen Karyesh, concerned house lord, we have seen Varshesh, lord of the year, we have seen Muntesh, lord of Muntha. तो कहता है कि ये चारों प्लैनेट लग्नेश, कार्येश, वर्षेश और मुंतेश अगर वर्ष कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पंचवर्गीय बल से है कि उन सब का पंचवर्गीय बल 10 यूनिट या 10 विश्वा से ज्यादा होना चाहिए। इन चारों प्लैनेट का लग्नेश, कार्येश, वर्षेश और मुंतेश, इन तीनों का अगर पंचवर्गीय बल वर्ष कुंडली में 10 यूनिट से ज्यादा है और ये प्लैनेट जो है वो केंद्र में या पर्णफल हाउस में प्लेस्ड है, केंद्र में प्लेस्ड है या सक्सीडेंट हाउसेस में प्लेस्ड है, तो naturally it's a very positive yoga, it's a very auspicious yoga and task will be accomplished easily. तो ये एक पॉजिटिव योगा हो गया। Then Tambir yoga. The names are such that it's difficult to remember. So Tambir yoga, these are all Arabic names. Neither aspect nor itsal between Lagnesh and Karyesh. अभी कोई इत्साल योग नहीं बन रहा, लेकिन however one of these planet is end of the sign and forms an itsal or comes between diptansh of some strong planet after entering into next sign. इसका मतलब दो प्लैनेट के बीच में जो लग्नेश है और कार्येश है उन दोनों के बीच में इत्साल योग नहीं है, लेकिन इन दोनों में से जो एक प्लैनेट है वो एंड ऑफ द साइन में है और जैसे ही वो नेक्स्ट साइन में एंटर करेगा तो इट इज फॉर्मिंग एन इत्साल विद सम अदर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, किसी और स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के साथ वो इत्साल बनाएगा। तो कहते हैं कि ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, ये भी जो है अच्छी इंडिकेशन को इंडिकेट करता है। दिस इज नोन एज ए तांबीर योगा। नेक्स्ट इज द दुर्फा योगा। अगेन इट इज एन इनऑस्पिशियस योगा और वही है सेम चीज, अगर लग्नेश, कार्येश, मुंथेश और मुंथा अगर वीक होती हैं वर्ष कुंडली में तो इस नेगेटिव और इनऑस्पिशियस योगा। एंड द लास्ट इज चंद्र दुर्फा योगा। If moon is weak in the Varsh Kundli, then again it's not a positive indication. तो ये हमारे जो 15 योग हैं ताजिक योग, इनको हम जो भी हमारा एनुअल चार्ट होगा उसमें हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि हमारा जो एनुअल चार्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है या कौन सा काम हो सकता है कौन सा काम नहीं हो सकता। तो वी टेक द हेल्प ऑफ ऑल दिस योगास। So we calculated Muntha, and Muntha we said is a very important point in the Varsh Kundli. So how we get the result of Muntha in different houses? House occupied by Muntha gets activated that year. पहली चीज तो ये है कि जिस हाउस में भी Muntha होगी, that house gets activated. You start getting the result of that house. और डिपेंड करेगा कि रिजल्ट ऑस्पिशियस या इनऑस्पिशियस होंगे, वो हाउस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कहते हैं कि जो बेस्ट मुंथा होती है अगर वो 9, 10, 11 हाउसेस में होती है, तो हम कहते हैं कि इट मींस इट्स रियली बिकॉज दिस हाउसेस विल गेट एक्टिवेटेड। ऑस्पिशियस होती है 1, 2, 3, 5th हाउस में और इनऑस्पिशियस 3rd हाउस में, 6, 8, 12 हाउसेस में, और कहा कि मुंथा की पोजीशन जो है पुअर मानी गई 4th and 7th हाउसेस में।
तो मुंता अगर डिफरेंट हाउसेज में होगा तो क्या रिजल्ट मिलेंगे? मुंता अगर कहते हैं फर्स्ट हाउस में होता है तो यू गेट सक्सेस, फाइनेंशियल गेन्स, प्रॉस्पेरिटी, गुड फूड आल्सो. सेकंड हाउस, सॉरी, गुड हेल्थ, प्रोफेशनल प्रोग्रेस, फेम एंड फॉर्चून. सेकंड हाउस में होता है तो सक्सेस, फाइनेंशियल गेन्स, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फूड. थर्ड हाउस में गेन्स फ्रॉम कोबॉर्न एंड फ्रेंड्स, सक्सेस, विक्ट्री. फोर्थ हाउस में होता है तो इट्स बैड, मेंटल एगोनी, disharmony in the family, ill health, problem from the government. Fifth house again good, so good results for education and children, progress, happiness. Sixth house में है तो physical and mental agony, losses due to enemies, theft, debts. Seventh house में trouble and disease of a spouse, is not supposed to be good in the seventh house. Loss in profession, dishonor. Eighth house में disease, accident, loss of wealth and honor, useless journeys also. Ninth house is good, so fortunate, unexpected gains, favor from the government, domestic peace. 10th house may get high position, promotion, fame, cooperation from authorities. 11th house may get success in all your ventures, you get gains, status, good health, good fortune also. 12th house may poor health, is bad in the 12th house, so poor health, loss of wealth, unproductive expenditure, change of place, failures, sleeping disorders. Similarly, about verses, what is the position of verses, how we interpret the result of verses. So if the verses is in the 6, 8, 12 houses, if the verses is placed in the 6, 8, 12 houses, it doesn't indicate good results. But at all other places, results are supposed to be good. If it is combust, retrograde, हाँ, अगर ये combust है या retrograde है Lord of the Year, so then again it is supposed to be bad. It will not give you good result. अगर Lord of Year की full strength है, then you get full benefic result. अगर weak है, तो naturally you get bad result. And what they say, you consider the strength of the Lord of the Year in the birth chart also. What is the Lord of Year? That planet you should consider the strength in the birth chart also. Then Lord of the Year has dominance over the whole year, and its effects are felt throughout the year. जैसे आपने अभी देखा राजीव गांधी का चार्ट, the Lord of Year was Sun, and Sun was placed in the 10th house. It means the profession house will play a dominant role in that year. Results depend on the significatorship of the Lord of the Year. So, Sun, naturally, this type of results you get. Same importance as the Lagna Lord. Just say what importance you get the Lagna Lord, same result you have to go to the Varsesh also. Involvement of Lagna Lord of the Year in the formation of Tajak Yoga must be considered. If जैसे हमने कहा कि इत्साल योग वगैरह बनते हैं, तो if इत्साल is with the Lord of the Year, then that definitely it's a good position. और जो स्ट्रेंथ होती है वर्सेस की, उसके हिसाब से हम कहते हैं कि पूर्ण बली या उसकी स्ट्रेंथ क्या है. पूर्ण बली होता है कि अगर उसकी स्ट्रेंथ 12 विश्वा से ज्यादा होती है. मध्यम बली अगर उसकी स्ट्रेंथ 6 और 12 विश्वा के बीच में होती है, और अल्प बली या वीक होता है अगर उसकी स्ट्रेंथ इज लेस देन 6 विश्वास. नाउ different verses, what type of results you can expect from those planets. If Sun is the verses, you can expect wealth, prosperity, fame, status, good health, all those things. If Moon is the verses, you get favor from the government, wealth, luxuries, raise in the status. Mars agar verses hai to victory, fame, honor, raise in status, happiness from co-born, successful completion of all your ventures, confidence, enthusiasm. Mercury agar verses hai to gain in the profession, intellectual ventures, gains from the friends and the family, new business, all kind of comforts and happiness. Jupiter hai agar to is very auspicious, you will get peace, happiness, religious and spiritual pursuits, financial gains, happiness from progeny and prosperity. Venus agar hai to you get all gains, luxuries, good health,
गवर्नमेंट फेवर, ऑस्पिशियस फंक्शन, और अगर सैटर्न है तो एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सैटर्न गिव्स यू स्टेटस आल्सो, वेल्थ, gains in the profession. This is all about your annual chart. All these things we consider, that is Muntha, then Lord of the Year, Varshesh. We make this Tripataki chart and Sahem also. सर इसमें तो सारे अच्छे ही बताया आपने रिजल्ट सारे प्लैनेट के, वर्सेस तो अच्छे रिजल्ट देगा ना. पर अगर ऐसे 6 से 12 वगैरह में प्लेस हो, वही कहा कि अगर 6 से 12 में है तो नहीं देता, बट बाकी हाउसेज में तो अच्छे रिजल्ट देता है. वो तो यहाँ बता दिया कि 6 से 12 में रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, बट बाकी पोजीशन में इसके रिजल्ट अच्छे हैं, प्रोवाइडेड कि प्लैनेट भी तो स्ट्रांग होना चाहिए. और उसकी पोजीशन हम इसीलिए उसमें भी देख लेते हैं बर्थ चार्ट में. अगर बर्थ चार्ट में भी अगर वो प्लैनेट स्ट्रांग है तो डेफिनेटली इट इज बेटर. ठीक है सर जैसे हम अपने हॉरोस्कोप, किसी के भी हॉरोस्कोप से उसके रिलेटिव्स के बारे में भी निकाल सकते हैं, सपोज फादर, मदर वगैरह, तो ये प्रिंसिपल्स वैसे ही एनुअल हॉरोस्कोप में भी अप्लाई हो सकते हैं. सपोज किसी के फादर का हॉरोस्कोप नहीं है, बट उसके एनुअल चार्ट से उसके फादर का या मदर का या किसी रिलेटिव का. हाँ, नेचुरली हम उसके थोड़ा सा आइडिया तो लगेगा ही उससे, क्योंकि ये तो एनुअल चार्ट इज जस्ट बर्थ चार्ट ओनली, मैग्निफाइड फॉर्म ऑफ बर्थ चार्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर. सो वही प्रिंसिपल एप्लीकेबल होंगे इसमें भी. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी था कि 6 से 12 अच्छे नहीं होंगे, तो सपोज मदर के लिए देखना है तो 6 से 12 फ्रॉम 4th हाउस, तो उनको हम चेक कर सकते हैं. हाँ, जैसे मान लीजिए कि मून की पोजीशन अच्छी नहीं है, या जो आपका बर्थ चार्ट में जो 4th हाउस का लॉर्ड है उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है एनुअल चार्ट में, ओके, तो नेचुरली वो अच्छे रिजल्ट इंडिकेट नहीं करेगा. ओके. अनिल जी, मुंथा जिस हाउस में उसका तो इम्पोर्टेंस है, व्हाट अबाउट द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस? हाँ, मुंथेश तो जैसे हमने कहा जितने योग अभी देखे तो उसमें हमने क्या कहा कि लग्नेश, वर्षेश, मुंथेश अगर स्ट्रांग होंगे तो नेचुरली रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे उस साल जो है. तो मुंथेश आल्सो शुड बी इम्पोर्टेंट, स्ट्रांग. जैसे आपने बताया कि मुंथा 9th, 10th एंड 11th में अच्छा होता है. हाँ, 4th एंड 7th में that is the basic position of मुंथा, क्योंकि मुंथा इज अ पॉइंट ऑफ जोडियक. अगर वो पॉइंट ऑफ, that is true for मुंथेश आल्सो. हाँ, मुंथेश भी नेचुरली स्ट्रांग का मतलब क्या हुआ, अच्छे हाउस में है, बेनिफिक प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, उच्च का है, तो वो स्ट्रांग हो गया उसको. जिस हाउस में मुंथा अच्छा है उसी हाउस में मुंथेश भी अच्छा रहेगा. करेक्ट. मुंथा तो एक जैसे दो चीजें कही कि जहाँ मुंथा होता है कि वो हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है उस साल के इवेंट के लिए, और अगर मुंथेश भी अच्छा है तो नेचुरली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आपको, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. जैसे आपने बताया साहब मुंथा 9th, 10th, 11th में बहुत ज्यादा अच्छा होता है. अच्छा मानिए. मुंथेश के लिए भी सेम थिंग होल्ड्स गुड? और नहीं, 9th, 10th, 11th हाउस वैसे तो अच्छे हैं ही हैं, बट नेचुरली अगर मुंथेश भी असेंडेंट में होगा तो और भी अच्छा है. बट जहां तक पॉइंट का सवाल है, वो कहा कि इन जैसे एक हाउस में या उस हाउस में स्थिति पॉइंट की जो पोजीशन है 9th, 10th, 11th में वो अच्छी मानी गई. एंड नेचुरली मुंथा लॉर्ड आल्सो हैज टू बी स्ट्रांग, जब तो मुंथे का फल पूरा मिलेगा आपको, नहीं तो कैसे मिलेगा. जैसे हमारे ये कहना है 4th एंड 7th में आपने बताया कि मुंथेश जैसा रहेगा, अच्छा नहीं होता, मुंथेश लॉर्ड भी अच्छा नहीं होगा. नहीं, मुंथेश लॉर्ड से मतलब नहीं है. दिस इज ओनली कंसर्निंग विद द पोजीशन ऑफ मुंथा, ओनली विद द पोजीशन ऑफ मुंथा. और मुंथेश को तो वैसे ही देखेंगे ना जैसे हम बाकी प्लैनेट्स को देखते हैं, जैसे हम नॉर्मल प्लैनेट को देखते हैं वैसे ही देखेंगे, प्राशरी में जैसे देखते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी, हाँ जी. सेम उस पे दृष्टि भी देखनी होगी, इवन दैट कि उस साल के अंदर जो है राहु केतु के बीच में ग्रह नहीं आने चाहिए, वो चीज भी देखी जाती है. वो सारी चीजें हम वैसे ही देखेंगे, क्योंकि ये तो हम पराशर सिस्टम से तो देख रहे हैं कि उच्च का है, नीच का है, बेनिफिक का है, मेलिफिक का है, किस हाउस में प्लेस्ड है, वो हम उसी तरह से देखेंगे. सर इसके कुछ एग्जांपल्स कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो बहुत है, लेकिन आई थिंक हम सबको प्रैक्टिस चाहिए. हाँ, तो अब नेक्स्ट टाइम एक आध एग्जांपल ले लेंगे इसका. बिना एग्जांपल के समझ नहीं आएगा सर. हाँ, वी विल टेक एन एग्जांपल्स. सर एक जनरल क्वेश्चन. हाँ जी, Sorry, go ahead, Anjali ji.
एक जनरल क्वेश्चन है सर, ये जो जितनी भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं एस्ट्रोलॉजी की, वैदिक या ताजिक या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, तो सर इनमें से मोस्ट इफेक्टिव कौन सी है, या सारी ही इफेक्टिव है? बेसिक तो पराशर सिस्टम हो गया, अन्ना खा लो। राइट। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी। एंड बाकी क्या है, बाकी तो एडिशनल टूल हैं आपके जो आपकी प्रेडिक्शन में आपकी हेल्प करते हैं, बट बेसिक इज द पराशर सिस्टम, and neither of these, any of these can be taken as a full complete in itself, so they are basically an additional tool for parasar system. अनिल जी, एक क्वेश्चन आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट, ये आजकल जो कोरोना वायरस जो है सब एपिडेमिक है, ये कौन सा प्लेनेट इसको सिग्निफाई करता है, मार्स? और देखिए बहुत लोगों ने प्रेडिक्शन कर ली, कोई प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ है, nobody knows this type of events actually। ये जो प्लेनेट कौन सा सिग्निफाई करता है एपिडेमिक, ये नहीं कह सकते कि कौन सा, जैसे केतु टाइप का प्लैनेट है वो इन चीजों को सिग्निफाई करता है, या पर्टिकुलरली जैसे मार्स एंड राहु का इन्फ्लुएंस हो, मार्स केतु का इन्फ्लुएंस हो, तब इस टाइप की चीजें होती हैं। बट इस टाइप की जो पेंडेमिक है, तो आई डोंट थिंक, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव ट्राइड बट नोबडी कुड प्रेडिक्ट एक्चुअली। सर मुंडेन क्या कहता है बेसिकली? हाँ जी, मुंडेन में क्या कहता है कोरोना के बारे में? नहीं अनिल जी, उसके बारे में पूछ रहे हैं, हम किसी की जन्म पत्री कुंडली देख के कैन वी से कि ये कोरोना वायरस हो सकता है इसको या नहीं हो सकता? देखिए बीमारी का उसका इंडिकेशन होगा, और इसमें भी जो सिचुएशन ऐसी है ना कि एवरीबॉडी इज अफेक्टेड बाय दिस। हम ये तो बता सकते हैं कि बहुत सारे, जैसे मैं देखता हूँ आजकल लोग जो है कि उनकी खराब पोजीशन है या सीरियस पोजीशन है, तो पूछते हैं कि क्या होने वाला है, तो उसमें आप प्लैनेट की पोजीशन देख के बता सकते हैं कि रिकवरी होगी या नहीं होगी। वो तो ठीक है, बट जब सबको ही हो रहा है मान लीजिए कोरोना, तो फिर ये जैसे मान लो कोई प्लेन में जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, सब लोग मर जाते हैं, बट सबका अगर आप हॉरोस्कोप देखेंगे तो उसमें डेथ थोड़ी इंडिकेटेड होगी सबके हॉरोस्कोप में। तो मुंडेन इवेंट दे टेक ओवर एज द ओवर द इंडिविजुअल इवेंट्स एक्चुअली। ओके या बट सर एक डेफिनेटली क्वेश्चन आप, पूछना था आपसे। हाँ जी, सॉरी आप कंप्लीट कर लीजिए पहले। नहीं बोलिए। सर जैसे राजीव गांधी का चार्ट आपने दिखाया, इसमें मार्स का एस्पेक्ट था ओन साइन में। मेरा बड़ा बेसिक क्वेश्चन एक ये था कि जैसे मार्स तो मेलेफिक हो गया, हाँ। तो वो एस्पेक्ट तो आप कहते हो ना, चाहे जो भी हो, योग कारक हो, जो भी हो, एस्पेक्ट तो खराब ही होता है। नहीं, मैंने ये कहा कि कोई भी प्लैनेट जब अपने साइन को एस्पेक्ट कर, अपना साइन है, तो इट मेक्स ए राजयोगा कंसर्निंग दैट हाउस। कोई भी प्लैनेट हो, मेलेफिक हो, बेनिफिक हो, जब अपने हाउस को ही प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने हाउस को ही देख रहा है, तो नेचुरली इट विल प्रोटेक्ट दैट हाउस। तो मेलेफिक हो, बेनिफिक हो, कोई भी हो, लेकिन कोई भी प्लैनेट जब अपने साइन को एस्पेक्ट करता है तो इट गिव्स यू गुड रिजल्ट। अब यहाँ पर आप देखिए कि मंगल ऑलरेडी योग कारक है उसके हॉरोस्कोप में, और योग कारक प्लैनेट है, 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, अपना साइन है उसको, तो इट मेक्स द 9th हाउस वेरी स्ट्रांग। ओके, अगर अपना साइन नहीं होता देन इट वाज अ मेलेफिक एस्पेक्ट। अब अपना साइन है तो इसलिए ये एस्पेक्ट अच्छा हो जाता। ओके अनिल जी, एक और क्वेश्चन। अनिल जी, 6th हाउस में जुपिटर है मान लीजिए जी, और 6th और जुपिटर बहुत अच्छा है उस समय, ऑस्पिशियस। तो 6th हाउस के जितने भी सिग्निफिकेंस है वो इसको इंप्रूव करेगा, बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा नहीं, ये उसको प्रोटेक्ट करेगा, बढ़ाएगा नहीं। सिकनेस को बढ़ाएगा कि कम करेगा? नहीं बढ़ाएगा नहीं, कम करेगा। देखिए जो 6, 8, 12 हाउसेस है ना, इसमें अगर मेलेफिक प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं तो उस हाउस के सिग्निफिकेशंस को बढ़ाते हैं, मेलेफिक होते हैं तो। अगर बेनिफिक होते हैं तो नहीं बढ़ाते। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा 8th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो नेचुरली 8th हाउस के सारे सिग्निफिकेशन खराब करेंगे। अगर 8th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है तो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही 6th हाउस में, ऐसे ही 12th हाउस में बेनिफिक खराब नहीं करेंगे, मेलेफिक खराब करेंगे। जैसे बोलता है राहु अच्छा होता है 6th हाउस में, दैट इज द बेस्ट पोजीशन। राहु दैट इज मेलेफिक। हाँ देखिए 6th हाउस तो उपाचय स्थान है, और उपाचय स्थान में कोई प्लैनेट खराब नहीं होता उपाचय स्थान में। तो पहली चीज तो राहु अगर 10th में भी होगा बहुत अच्छा है, 11th में भी होगा बहुत अच्छा है, 3rd में भी होगा तो बहुत अच्छा है, बट 6th में तो बेस्ट है। पर अनिल जी डेफिनेशन बोलता है मेलेफिक
जिस हाउस में होते हैं उसके सिग्निफिकेशन को स्पॉइल करता है। उपाच्य स्थान है ये जो अच्छा ठीक है, अच्छा ओके। हाँ। बट और से 8th हाउस सर, देखिए उल्टा है ना ये जो उसके डैमेज करना, मतलब यहाँ उसका उल्टा असर निकालिए कि वो बीमारी है तो और बढ़ाएगा, वो उसको कम नहीं करेगा। कोई भी मेलेफिक प्लैनेट अगर त्रिक हाउस में बैठ जाता है तो उसको खराब करता है। एक से खराब नहीं होता, बट जहां भी 2 या 3 का कॉम्बिनेशन होता है तब उसको स्पॉइल करता है। ओके ओके। अंकल एक जनरल क्वेश्चन है राहु के बारे में जी। you know the behavior and we've discussed this before but I'm just a little unclear कि किसी की पत्री देख रहे हैं and राहु का क्या मतलब क्या रिजल्ट्स मिलेंगे राहु की दशा या अंतरदशा में? देखिए so ये कैसे, मतलब I'm just a little, I know कि it can act according to the planets it's associated with. मैं बताता हूँ। कोई भी हॉरोस्कोप है, हाँ जी, जहां तक राहु केतु का सवाल है, पहले हम ये देखते हैं कि उनके साथ कौन से प्लैनेट प्लेस्ड है और किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है। कौन से प्लैनेट प्लेस्ड है और किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है, तो उसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, राहु केतु विल गिव द रिजल्ट ऑफ दैट प्लैनेट, पहली चीज। और मान लीजिए कोई प्लैनेट है ही नहीं और ना ही किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट है, जैसे इस केस में आप देखिए इसके साथ कोई प्लैनेट नहीं है और ना ही कोई प्लैनेट इसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो then it will give the result of its lord of the sign in which it is placed. तो यहाँ पर लॉर्ड मून है तो ये मून के रिजल्ट देगा। got it, ठीक है। और यहाँ पर ब्यूटी क्या है इस हॉरोस्कोप की, लग्न भी, मून भी, सन भी, तीनों बेनिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है, तीनों बेनिफिक प्लैनेट के साथ। पर डेथ तो बड़ी खराब हुई थी सर। डेथ खराब हुई तो 8th हाउस देखिए, 8th हाउस की क्या पोजीशन है, लॉन्गेविटी का 8th हाउस है हमारा जी। तो 8th हाउस की क्या पोजीशन है यहाँ पर? तो सैटर्न का एस्पेक्ट है, मार्स का एस्पेक्ट है, राहु का एस्पेक्ट है, नहीं राहु का नहीं है, हाँ राहु का भी है, सैटर्न का भी है, मार्स, हाँ सैटर्न है, मार्स है, तीनों मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, एक भी बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, एक भी बेनिफिक प्लैनेट का, अननेचुरल डेथ। तो पहली तो लॉन्गेविटी कम हो गई और दूसरा डेथ इज अननेचुरल। और जैसा हम लोगों ने कहा था कि जब 8th हाउस में सैटर्न, मार्स, राहु में से 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो मैरिज भी ऐसी होती है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द फैमिली एंड द सोसाइटी। और मैरिज वो चलती भी नहीं है बहुत दिन, फिर उसकी मैरिज की भी लॉन्गेविटी नहीं होती। बट 8th हाउस इज सो अफ्लिक्टेड। आप किसी का भी देख लो, इंदिरा गांधी का देख लो, संजय गांधी का देख लो, देयर 8th हाउस इज बैडली अफ्लिक्टेड। और जिसका भी 8th हाउस इज एसोसिएटेड विद द बेनिफिक प्लैनेट, आप देखिए उसकी जो डेथ होती है ना, पता भी नहीं चलता उसको। जैसे आजकल बहुत लोगों के सोते सोते डेथ हो जाती है या बैठे बैठे डेथ हो जाती है, दैट इज 8th हाउस। बट अगर 8th हाउस में बहुत सारे मैलिफिक है तो नेचुरली नॉर्मल डेथ नहीं होगी, पीसफुल डेथ नहीं होगी, डेथ में आपको कष्ट सहना पड़ेगा। सर अगर कैप्रिकॉर्न लग्न है अगर जी, और सैटर्न 5th हाउस में है और लग्न में राहु है, तो वो राहु अच्छा माना जाएगा या खराब माना जाएगा? नहीं, राहु को आपको देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पर है, किस प्लैनेट के साथ में है। हाँ सर, लग्न में है राहु और कोई डेट है कैप्रिकॉर्न आपके पास? लग्न है। डेट है आपके पास? हाँ जी सर, हाँ जी सर, बताइए। 20 अगस्त 1972 1972 6:30 PM प्लेस दिल्ली सर। अब बताइए। सर अब इस केस में जैसे इनकी राहु की दशा चल रही है, राहु सैटर्न, तो अब हालांकि इनके हिसाब से क्योंकि सैटर्न 5th हाउस में है, लग्न का लॉर्ड है, तो अच्छा ही है। देखिए तो पहली चीज तो यह है कि जब भी 2 मेलेफिक प्लैनेट की दशा ऑपरेट होती है, पर्टिकुलरली राहु सैटर्न जैसे है, तो ये दशा अच्छी नहीं होती कभी भी। राइट सर। तो ये इसमें तो प्रॉब्लम आती ही आती है कि जब राहु सैटर्न हो, सैटर्न राहु हो, सन राहु हो, जब भी 2 मेलेफिक प्लैनेट की जब दशाएं होती हैं तो नेचुरली प्रॉब्लम आती है।
राइट सर। तो सर इनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनका जैसे कोई भी बिजनेस की डील बननी होती है, बिल्कुल वो लास्ट मिनट पे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ सर, इनको कुछ टेंडर सबमिट करना था और एक सिंपल सा माइनर एरर रह गया कि वो .nic.in की जगह ईमेल आईडी में .com लिख दिया, उसकी वजह से इनका पूरा टेंडर रह गया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है। हाँ, बिकॉज दूसरा ट्रांजिट भी देखिए ना सर, ट्रांजिट में तो अभी राहु के ऊपर सेकंड हाउस में है, राहु के ऊपर Saturn। राहु के ऊपर शनि ट्रांजिट कर रहा है, इट्स वेरी बैड एक्चुअली। और 7.5 भी चल रही है, राइट। तो दशा भी बहुत खराब चल रही है, तो कोई भी चीज तो अच्छी नहीं है एक भी चीज। ओके, सो इनका सर फिर 23 अक्टूबर 23 के बाद कुछ बेटर होगा? राहु मरकरी का पीरियड होगा, मरकरी की राहु पोजीशन मरकरी देखिए, में 9th हाउस का लॉर्ड है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा। ओके, ट्राइन का लॉर्ड इसमें है क्वाड्रेंट केंद्र में, में। तो इट्स अ गुड पोजीशन एक्चुअली। ओके सर। सर ये नीलम पहन सकते हैं क्योंकि लग्न लॉर्ड का स्टोन है, तो नीलम सूट करेगा इनको? थोड़ा सा यही है कि राहु का भी एस्पेक्ट है इसके ऊपर, तो राइट। सैटर्न राहु मिलके इस हाउस को थोड़ा सा परेशान करते हैं। ओके सर। तो इट्स बेटर नॉट टू वियर एक्चुअली। अच्छा, ठीक है सर, ठीक। पन्ना अच्छा है सर इनके लिए? हाँ जी, पन्ना अच्छा है इनके लिए, बुध का लिए। ये मारा के स्थान में बैठ गया ना ये, पर केंद्र में भी बैठा है सर। हाँ, बट मारक स्थान भी है, मरकरी। मारक है, तो ये क्या होता है कि जब ऐसा, ठीक है रिजल्ट मरकरी के अच्छे होंगे, लेकिन मारक तो रहेगा, उसका जो मार्कत्व है वो खत्म नहीं होता, तो उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे तो नेचुरली और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, तो हमें क्या जरूरत है उसको पहनने की। ठीक है सर, थैंक यू सर। Any other question? I'm having a series of lecture at Lions Club. So it is on every Saturday at 5 o'clock. So in case you want to join, you can join that actually. कल मैंने ज्वाइन किया था, कल किया था क्लास। अच्छा, किया था आपने? Yes, कल तो join किया था yesterday. It was really good lecture. It was because they had a capacity of 100, so only they could admit 100 and 50 were waiting actually. So most of them they could not enter actually. So they say it will be on every Saturday at 5 o'clock. So in case you want to join, you can join. Post the detail. आप डिटेल्स व्हाट्सएप पे डालेंगे फिर? हाँ, मैं डाला था, पहले भी डाला था, तो ठीक। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ जी, उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा उसका? हाँ, रिकॉर्डिंग में मैंने डाल दिया आज। ओके, कल के लेक्चर सर मैरिज एंड एस्ट्रोलॉजी, मैरिज वाला जो रिकॉर्डिंग डाला आपने? करेक्ट, वही जो कल का था वो लेक्चर। चलिए ठीक है, we meet on next Sunday. Thank you, uncle. Okay, Thank you, thank you so much. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Good night, sir.